السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلی جا رہی ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں موسم کیسا ہے اور کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ بلوچستان، دہشت گردوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا دو ٹوک اعلان۔ مذاکرات صرف آئین پاکستان پر یقین رکھنے والوں سے ہوں گے، بلوچستان کے لیے خصوصی پالیسی۔ بلوچستان میں ڈیوٹی دینے والے افسران کے لیے مراد کا اعلان۔ 48ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے آدھے افسروں کو فوری طور پر بلوچستان میں تعینات کیا جائے گا، باقی افسران کی 6 ماہ بعد تعیناتی ہوگی۔ 1 سال بعد 49ویں کامن کے ٹریننگ افسران بلوچستان میں فرائض انجام دیں گے۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے ورثاء میں امدادی چیکس بھی تقسیم۔ 26 اگست کو بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے دلخراش واقعے پر غم و غصے کا اظہار۔ پوری قوم دل گرفتہ ہے، شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ ملوث دہشت گرد تنظیمیں خارجی عناصر اور دراندازوں کو ہر قیمت پر کچلیں گے۔ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ ہم اپنی اجتماعی بصیرت اور قوت ارادی اور انویورنگ ارادے کے ساتھ بلوچستان میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف رچائی جانے والی سازش بے نقاب، دہشت گرد تنظیم BLA کا لاپتہ افراد کے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ بیلا میں FC کیمپ پر خودکش حملے میں طیب بلوچ کی شناخت ہو گئی۔ BLA نے طیب بلوچ عرف الیاس لالا ولد مولا بخش کو لاپتہ ہونے کا ڈھونگ رچایا۔ اپریل میں FIR بھی درج کرا دی۔ چانکیا کا پیروکار بھارت ہمسایہ ملکوں میں دہشت گردی میں ملوث، روز اول سے پاکستان کے وجود کا انکاری دہشت گرد تنظیموں کا اولین سپانسر۔ بھارتی میڈیا کے قاتل دہشت گردوں کو ہیرو بنانے کی ناکام کوشش، عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ کلبھوشن یادو بلوچستان میں بھارت کی مداخلت کا ناقابل تردید ثبوت۔ صدر مملکت نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی۔ بل کا مقصد اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں ترامیم کرنا ہے۔ آپ وہ پہلے اور واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے انفرادی کھیلوں میں ملک کے لیے طلائی تمغہ جیتا ہے۔ اپنی اس عالمی کامیابی کی بنا پر آپ پاکستانی قوم کے لیے فخر اور خوشی کا سبب بنے۔ کھیل جیولن تھرو کے شعبے میں آپ کی گراں قدر کامیابیوں کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ارشد ندیم کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو ہلال امتیاز عطا، صدر آصف علی زرداری نے ہلال امتیاز سے نوازا۔ جیولن تھرو کے کھیل میں گراں قدر کامیابیوں کا اعتراف، صدر مملکت کا چیمپئن ارشد ندیم کے لیے $10 کروڑ کا اعلان۔ واحد پاکستانی جنہوں نے اولمپکس میں انفرادی کھیلوں میں طلائی تمغہ جیتا۔ تعلیم سب کے لیے، پنجاب میں بیک ٹو اسکول مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ بڑے پیمانے پر داخلہ مہم شروع۔ مریم نواز کا گورنمنٹ کینڈیڈیٹ گرلز ہائی اسکول ایمپریس روڈ میں کم سن بچی کی انرولمنٹ کر کے کیمپین کا باقاعدہ آغاز۔ سمارٹ کلاس روم پروجیکٹ کا افتتاح، کلاس روم میں طالبات سے بات چیت، فزکس لیب کا بھی دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ پنجاب اور IS کو صارفین کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کی منظوری۔ صارفین کو اگست اور ستمبر کے بلوں میں $14 فی یونٹ ریلیف، 201 سے 500 یونٹ تک کے گھریلو صارفین ریلیف حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز۔
पंजाब के बाद सिंध भी आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां। मसाइल का इदराक है, रिलीफ देने के लिए सस्ती बिजली के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। सिंध में सोलर एनर्जी पार्क बनाएंगे, जरूरतमंदों को सोलर सिस्टम देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में मुफ्त सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर बनने के दावेदार ने खैबर पख्तूनख्वा में निजाम तालीम का जनाजा निकाल दिया। पीटीआई हुकूमत के 12 साला दौर में तालीम तरजीह नहीं रही। 6000 से जायद स्कूलों में तशवीशनाक सूरत हाल। 2500 से जायद रोशनी से महरूम स्कूल अंधेरों का शिकार। 2000 से जायद स्कूलों में पीने के साफ पानी समेत बुनियादी सहूलतों का फकदान। स्कूलों में बंधे जानवर संगीन सूरत हाल का मुंह बोलता सबूत। खैबर पख्तूनख्वा करप्शन और सरकारी खजाना बंदर बाट की नजर। खुसूसी रिपोर्ट खबरनामे में शामिल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्शन, इंटरनेशनल मीडिया सरापा एहतजाज। डेली मेल ने बानी पीटीआई को बेआबरू का खिताब दे दिया। बानी पीटीआई अवामी गजब का भी शिकार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गम और गुस्से से भरी ईमेल्स और एहतजाजी पिटीशंस मौसूल। यूनिवर्सिटी में मुजाहिरे। अंदरून सिंध में शदीद बारिशें, निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, खड़ी फसलों को नुकसान। मुतल्लिका महकमे, इंतजामी और बल्दियाती इदारे मुतहर्रिक। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहा जाए। अस्पताल इंतजामात बेहतर बनाएं, वज़ीर आला सिंध का हुक्म। शुमाल मशरकी बहिरे अरब में समुद्री तूफान का खदशा। सुबह तक सिंध की साहिली पट्टी के करीब आने का इम्कान। मानसून में समुद्री तूफान का बनना गैर मामूली। समंदर में तुग़यानी का अंदेशा। माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी। पंजाब और बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें। पंजाब के बेशतर अजला में हालिया सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। पीडीएमए और मुतल्लिका इदारे अलर्ट। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सल्तनत ओमान का दौरा। हुक्काम और अस्करी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें। फौजी तरबियत, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई सनत, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तिफाक। काबिज इसराइली फौज का गजा में बड़ा ऑपरेशन। गुज़िश्ता 24 घंटों में 86 फलस्तीनी शहीद, 77 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शहादा की तादाद 40,602 हो गई। 93,855 अफराद जख्मी। इसराइली फौज की अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुनों की बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग। इमदादी कार्रवाइयाँ मुअत्तल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनियों के क़त्लेआम की शदीद मज़म्मत। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़ौजी कार्रवाई रोकने का मुतालबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला कुपवाड़ा में मजीद 3 नौजवान शहीद। जिला राजौरी और पुंछ में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयाँ। काबिज संगीनियों के साए में नाम निहाद इंतखाबात की तैयारियां। पैरामिलिट्री फोर्सेज की इजाफी 500 कंपनियों की तैनाती। मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल संगीन होने का खदशा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज दूसरा और आखिरी मैच कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच के लिए 12 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी प्लेइंग 11 से ड्रॉप। स्पिनर अबरार अहमद की वापसी। सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स से HD पर बराह रास्त। Been hammered the wicket. और टेनिस ग्रैंड स्लैम US ओपन। खवातीन सिंगल्स में अमेरिका की कोको गॉफ की तीसरे मरहले लंका भी तीसरे राउंड में पहुंच गईं।
हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। माँ तंदुरुस्त और बच्चा चुस्त, पाए खुशहाल इज़्दवाजी जिंदगी का सुख। मंसूबा बंदी के तवीरुल मुद्दती और आर्जी तरीके अपनाएं। मालूमात के लिए करीबी फलाही मरकज या हेल्थ क्लिनिक विजिट करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। अगर आप भी इनकी तरह CM लैपटॉप स्कीम और वजीर आला पंजाब के दीगर फलाही मंसूबों के अहल बनना चाहते हैं तो अभी PSER सर्वे में खुद को रजिस्टर करवाएं। अब होगा सबका शुमार। PSER। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा बलोचिस्तान की। कहा, मुज़ाकरात सिर्फ आईने पाकिस्तान पर यकीन रखने वालों से होंगे, दहशतगर्दों से किसी किस्म की रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलोचिस्तान के लिए खुसूसी पॉलिसी का ऐलान। 48वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आधे अफसरों को फौरी तौर पर बलोचिस्तान में तैनात किया जाएगा। वजीर आजम की सदारत में सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास और हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वालों के वरसा में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तफसील इकरामुल्लाह महसूद से जानिए। क्वेटा में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में 26 अगस्त को पेश आने वाली दहशतगर्दी के इंतहाई दिलखराश वाक़ये पर पूरी कौम गमज़दा है। शहीदों का खून रायगान नहीं जाएगा, दहशतगर्दी का सर कुछ लेंगे। हम अपनी इज्तिमाई बसीरत और कुव्वत, इरादी और अनवेवरिंग इरादे के साथ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा करना है। जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना वक्त की ज़रूरत है। बट वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, कि जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, उनके साथ ना सिर्फ कि कोई डायलॉग का सवाल नहीं पैदा होता, उनका ख़ात्मा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अब तक सूबे में 27,000 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं। NFC में सूबे का हिस्सा दुगना कर दिया गया है। दुश्मन CPEC की राह में रुकावट डालना चाहता है। ये तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है या KP के बाज़ हिस्सों में जो कुछ हो रहा है, दुश्मनाने पाकिस्तान जो नहीं चाहते कि CPEC का मंसूबा चले, जो पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के आड़े आना चाहते हैं। बलूचिस्तान में अफसरान की तैनाती से मुतल्लिक पॉलिसी का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तैनात अफसरान के अहल खाना के लिए सहमाही 4 एयर टिकट दिए जाएंगे। इसके अलावा कारकर्दगी की बुनियाद पर 3 अज़ाफ़ी पॉइंट भी पैकेज में शामिल हैं। Half of the officers from the 48th common training program of both police and civil side will be posted to Balochistan immediately for a period of 1 year. The remaining half of the officers from the 48th group will be posted to Balochistan 6 months from the initial deployment. They will also serve for a period of 1 year. After 1 year, the first half of the officers from the 49th common group will be posted to Balochistan for a period of 1 year. After 1.5 years, the remaining half of the officers from the 49th group will be posted to Balochistan for a period of 1 year. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों की लवाहिकीन से मुलाकात की, उन्हें हौसला दिया और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन में इमदादी रकूम के चेक्स भी तकसीम किए। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। कमेटी ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाते हुए सूबे में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तेज करने के अज़्म का इजहार किया। इजलास में बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामे जायजा लिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने का फैसला किया गया।
इजलास में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस, लेविज और मुतालिका महकमों की इस्तादाद कार बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन क़ुव्वतों को किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को मुतासर करने से रोकने के अज़्म का अयादा किया। कमेटी ने इस अज़्म का इजहार किया कि बुज़दिलाना हमलों के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और दीगर उमूर से मुतालिक अवामी नुमाइंदगान का आला सतह इजलास कोयटा में हुआ। इजलास में सियासी जमातों के सरबराहान ने बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को मुत्तला किया। इस दौरान बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का भी जायजा लिया गया। इजलास के शुरका ने बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के मुतासरीन के लवाहिकीन से इजहारी यकजहती और मजीद मासूम जानों के ज़िया को रोकने के लिए बर वक्त जवाब देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। इस दौरान मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाने वाले बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमलों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की गई। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने के अज़्म का इयादा किया गया। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर तिजारत, वज़ीर मनसूबाबंदी समेत वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने शिरकत की। इजलास में तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। लापता अफराद के नाम पर दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। लापता शख्स खुदकुश हमले में मुलव्विस निकला। रवा साल अप्रैल में तैयब बलोच और फिलियास लाला वल्द मौला बख्श को लापता शख्स करार देकर FIR दर्ज कराई गई थी। मेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में नौशकी के रिहायशी तैयब बलोच की शनाख्त हो गई। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी का ये वतीरा रहा है कि अपने सरकर्दा दहशतगर्दों को लापता अफराद की फहरिस्त में डालकर अपने मकरूह मकासद हासिल करती है। इससे कबल भी BLA लापता अफराद के नाम पर अपनी सियासत चमचा चुकी है। दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी था जो 25 मई 2022 को लापता बताया गया। वही दहशतगर्द गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया। इलावाजी दहशतगर्द इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारा गया। अब्दुल बदूद सातिकजई जिसकी बहन 12 अगस्त 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी, वो भी मच हमले में मारा गया। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासिर बैरूनी क़ुव्वतों की ईमा पर मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। ये बात आश्कार हो चुकी है कि मिसिंग पर्सन का ड्रामा रचाकर इनसे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कराई जाती हैं। बलूचिस्तान की तरक्की और अमन को बर्बाद करने में भारत की साजिशें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। कुलभूषण की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्द कार्रवाइयों का वाज़ेह सबूत है। भारतीय पुष्टपनाही की एक और वाज़ेह मिसाल हाल ही में बलूचिस्तान हमलों में उनके मीडिया पर जश्न मनाना भी है। भारतीय मीडिया ने बलूचिस्तान में दिलखराश हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों को हीरो बनाकर पेश किया। दिसंबर 2023 में BLA का एक कमांडर हथियार डालते हुए एतराफ़ कर चुका है कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही करते हुए उनकी माली मुआवनत और महफूज पनागाहें फराहम करता है। पाक चीन ताल्लुकात सबोताज करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने खसूसी सेल कायम कर रखा है। 2019 में द हिंदू के आर्टिकल के मुताबिक कलदम BLA के कमांडर्स भारतीय अस्पतालों में जेर इलाज रह चुके हैं और इन कमांडर्स के भारतीय सियासतदानों के साथ भी गहरे रवाबित हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान की जड़ें कमजोर करने की नाकाम कोशिशों में मुसलसल मसरूफ है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जानों का नजराना पेश करते हुए मुल्क की हिफाजत को यकीनी बना रही हैं। नाज़रीन, सदर ममलकत ने इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। बिल का मकसद इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत एक्ट 2015 में तरमीम करना है। सदर ममलकत ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की कामयाबियों के एतराफ़ में ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब हुई जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी हीरो को हिलाल इम्तियाज के एजाज से नवाजा। सदर ममलकत ने अरशद नदीम के लिए अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने की खुसूसी तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। तकरीब में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ समेत अरकान पार्लियामेंट और आला हुकाम ने शिरकत की।
सदर आसिफ अली जरदारी ने पेरिस ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी के इतराफ में अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। जनाब अरशद नदीम साहब कौम का फ़ख्र हैं। आप वो पहले और वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इनफरादी खेलों में मुल्क के लिए तलाई तमगा जीता है। आपने 92.97 मीटर की शानदार थ्रो का नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और एक नई तारीख रकम की। अपनी इस आलमी कामयाबी की बिना पर आप पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र और खुशी का सबब बने। आपकी तारीखी फतह नौजवानों में इनफरादी खेलों में दिलचस्पी लेने और अपने मुल्क के लिए मज़ीद दरख्शां बाब रकम करने में मददगार साबित होगी। जेवलिन थ्रो के शोबे में आपकी गरां कदर कामयाबियों के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। अरशद नदीम की जीत उनकी अनथक मेहनत, लगन और इस्तकामत के बायस मुमकिन हुई। अरशद नदीम वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के इनफरादी खेलों में तलाई तमगा जीता। ओलंपिक गोल्ड मेडल के अलावा अरशद नदीम बैनुल अक़वामी मुकाबलों में 5 तिलाई, 1 चांदी और 4 कांसी के तमगे अपने नाम कर चुके हैं। साल 2022 में अरशद नदीम को उनकी कामयाबियों के इतराफ में सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देना उनकी मेहनत का एतराफ है जो कि नौजवानों के लिए मशअल राह है। ओलंपियन अरशद नदीम ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने अरशद नदीम के लिए अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मुलाकात में सदर मुमलिकत ने कहा कि अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद करने के साथ साथ लातादाद नौजवान खिलाड़ियों को भी मुतासिर किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में दीगर खेलों को फरोग देने की जरूरत है और खिलाड़ियों के बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जानी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने उम्मीद जाहिर की कि अरशद नदीम मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अरशद नदीम ने हिलाल इम्तियाज अवार्ड अता करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब काबीना ने बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। सूबाई काबीना की जानिब से सोलर पैनल समेत दीगर अहम मंसूबों की भी मंजूरी दी गई। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में सूबे और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दी गई। काबीना ने आवाम को खातिर ख्वाह रिलीफ देने पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के वीएन और रिलीफ में मुआवनत पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि आइंदा साल गर्मियों में बिजली के बिलों में रिलीफ देने का काम अभी से शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ मिलने पर मुखालफिन परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा आवाम का साथ निभाएंगे। काबीना ने सूबे में मौसमियाती असरात से बचाव के वीएन एंड एक्शन प्लान 2024 की मंजूरी दी, जबकि आंखों के इलाज मुआवजे के लिए अल-शिफा अस्पताल को सरकारी अराजी लीज पर देने के साथ साथ मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स की भी मंजूरी दी गई। एम्प्रेस रोड पर गवर्नमेंट कनेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के दौरे के मौका पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में बैक टू स्कूल मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद स्कूल में बच्चियों की एनरोलमेंट में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आला ने स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया, जबकि तालबात से पौधे लगवा कर शजरकारी का आगाज किया और नन्ही तालबात को स्कूल बैग का गिफ्ट पेश किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर स्कूल को बेहतरीन बनाना मेरा मिशन है। उन्होंने स्कूल के स्मार्ट क्लासरूम को सराहा और तालबात पर जोर दिया कि वो तालीम हासिल करें और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, लाहौर में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का पहला वर्चुअल सेंटर पंजाब भर से गुमशुदा और मिलने वाले बच्चों के केसेस में मददगार साबित हो रहा है। इसकी तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम अपनी रिपोर्ट में। बच्चों के खिलाफ जराइम की रोकथाम और गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब ही नहीं पाकिस्तान के पहले वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की बुनियाद रखी। सेफ सिटी में कायम करदा वर्चुअल चाइल्ड सेंटर मुख्तलिफ हुकूमती और गैर हुकूमती इदारों के साथ मिलकर काम करता है ताकि बच्चों के हकूक के खिलाफ वर्जियों को रोकने और उनके खिलाफ होने वाली जराइम की तहकीकात में मामलत फराहम की जा सके। एक माह में 4313 केसेस मसूल हो चुके हैं और इस मरकज ने बच्चों से मुतल्लिका 1000 से ज्यादा FIR दर्ज करवा कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चे की इन्फॉर्मेशन उससे गेट करते हैं, बच्चे की उम्र क्या है, बच्चा घर से कितने बजे लापता हुआ है, जेंडर क्या है, बच्चे ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या है, कोई शनाख्ती अलामत हमें बता दें। और उसकी असिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी तस्वीर भी हम अपने व्हाट्सएप पे मंगवा लेते हैं। ये सेंटर लाहौर समेत पंजाब भर से गुमशुदा और मिलने वाले बच्चों के केसेस में मददगार साबित हो रहा है। डिफरेंट केसेस जिसमें आ जाता है चाइल्ड अब्यूज़, मोलेस्टेशन, किडनैपिंग, लेबर, चाइल्ड लेबर
اس کے علاوہ اس طرح کے کیسز بھی ہوتے تھے جس میں پیرنٹس خود بچوں کو مارتے ہیں. پنجاب بھر سے گمشدہ یا ملنے والے بچوں کی پولیس رپورٹ میرا پیارا ایپ اور 15 کال کے ذریعے موصول ہونے والی معلومات کا ڈیٹا بھی جمع کیا جا رہا ہے. گمشدہ بچوں کو ورثہ سے ملوانے کے لیے سیف سٹی ورچوئل سینٹر فار چائلڈ پل کا کردار ادا کر رہا ہے. لاوارث اور گمشدہ بچوں کے لیے اس طرح کے سینٹرز کسی نعمت سے کم نہیں. وردہ سلیم، پاکستان ٹائم نیوز، لاہور. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے اقدامات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی. مستحق گھرانوں کو مفت سولر سسٹم تقسیم کرنے کی تقریب سے ان کے خطاب کی تفصیل محمد زبیر الدین سے جانیے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مہنگی بجلی کے باعث عوامی مشکلات کا بخوبی علم ہے، جبکہ حکومت اپنے تمام تر وسائل کے ذریعے متبادل ذرائع کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے. لیکن ہم وہ سسٹینیبل سولوشنز چاہتے ہیں جس سے ہم غریب ترین طبقات کو the poorest of the poor کو ٹارگٹ کر کے پہلے ریلیف پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ میں عام پاکستانی کو، محنت کرنے والے پاکستانی کو جو مہنگائی کی وجہ سے آج مشکل میں ہیں، ان کو ہم یہ سپورٹ پہنچانا چاہ رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گھر بنا کر دیے جانے کے ساتھ ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے تحت انکم سپورٹ، غریب ہاریوں کو قرضہ، کراچی سمیت صوبے بھر میں عوامی بس سروس اور لوگوں کو روزگار دینا ہمارے منشور پر عمل پیرا ہونے کی عکاسی ہے. تقریر سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ تھر کا کوئلہ اور رینیوبل انرجی کے ذرائع سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں ہیں. صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے بتایا کہ کراچی اور لاڑکانہ میں 2 لاکھ سولر سسٹم فراہم کیے جا رہے ہیں، جبکہ پہلی کھیپ میں 50,000 کٹس فراہم کی گئی ہیں. تقریب میں دیگر صوبائی وزراء بھی شریک ہوئے. محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ناظرین، 12 سال سے پی ٹی آئی کے زیر اقتدار خیبر پختونخوا کے ہزاروں اسکول بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عدنان شاہ. محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم خیبر پختونخوا کی جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ صوبے میں اب بھی ایک بڑی تعداد ایسے اسکولوں کی ہے جہاں بنیادی سہولیات ناپید ہے. رپورٹ میں مختلف اضلاع کے 6,337 سرکاری اسکولوں کے بارے میں تشویشناک حقائق سامنے آئے ہیں. رپورٹ کے مطابق تقریباً 2,500 اسکولوں میں بجلی کی سہولت میسر نہیں ہے. 1,000 سے زیادہ تعلیمی اداروں میں پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے، جبکہ تقریباً 1,250 اسکولوں میں بیت الخلاء موجود نہیں ہے. تقریباً 2,000 اسکول ایسے ہیں جہاں 4 دیواری بھی نہیں اور بچے کھلے میدان میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. جن اضلاع میں اسکول بنیادی سہولیات سے محروم ہیں ان میں لوئر اور اپر کوہستان، مالاکنڈ، منسہرہ، پشاور، مردان، نوشہرہ، سوابی، شانگلہ، سوات، ڈیرہ اسماعیل خان اور چترال شامل ہے. ضم شدہ اضلاع میں تعلیمی اداروں کی حالت اس سے بھی ابتر ہے، جہاں زیادہ تر اسکول صرف کاغذوں کی حد تک موجود ہے. صحت اور تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے، جس کی فراہمی کے لیے محض سماجی میڈیا پر تشہیر نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے. صوبے میں تیسری بار حکومت بنانے والی جماعت کو انتشار کی سیاست کی بجائے عوام کے اصل مسائل کے حل کی طرف توجہ مرکوز کرنا ہوگی. عدنان شاہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. کچھ ایسا ہی خواب کرپشن جیسے سنگین جرم میں قید اڈیالہ جیل کا سزا یافتہ ایک قیدی بھی دیکھ رہا ہے، جو دنیا کی ایک ممتاز تعلیمی درسگاہ آکسفورڈ کا چانسلر بننا چاہتا ہے. یہ خبر سامنے آتے ہی عالمی میڈیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو غم و غصے سے بھری ای میلز اور احتجاجی پٹیشن موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں. تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے. اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب کا شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. لگتا ہے کہ وفاق میں 4 سال اور خیبر پختونخوا میں گزشتہ 10 برسوں سے زائد اقتدار کے مزے لوٹنے، سرکاری تحائف میں کرپشن کرنے، 9 مئی جیسے ریاست مخالف واقعات کی مبینہ منصوبہ بندی میں ملوث بانی پی ٹی آئی کے ارمان ابھی پورے نہیں ہوئے کہ انہوں نے برطانیہ میں قائم دنیا کی عظیم تعلیمی درسگاہ آکسفورڈ کے چانسلر کے انتخاب میں حصہ لینے کی درفتنی چھوڑ دی. مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو. بانی پی ٹی آئی نے پاکستان میں تو ہر شعبے کو اپنی تقسیم کی سیاست کے نظر کر دیا. اب وہ عالمی تعلیمی اداروں کی ساکھ کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں.
अडियाला जेल के कैदी ने सोचा कि शायद इस तरह ही वो पाकिस्तान से बाहर निकल सकें, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है, दुनिया भर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी पीटीआई के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के खिलाफ गम गुस्से से भरी ईमेल्स और एहतजाजी पिटिशंस मौसूल होना शुरू हो गई हैं। बरतानी अखबार डेली मेल ने तो बानी पीटीआई के नाम के साथ डिसग्रेस यानी रुसवा या बदनाम जैसा लफ्ज भी लगा दिया। अखबार के मुताबिक इन ईमेल्स में बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पिटीशन भी मौसूल हुई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि करप्शन केसेस में सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े तालीमी इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। तालिबान और उसामा बिन लादेन के पुरजोश हिमायत पर मबनी बानी पीटीआई का शिदत पसंद मौक़िफ़ भी चांसलर का उम्मीदवार बनने की राह में बड़ी रुकावट बन गया। पिटीशन में कहा गया कि बानी पीटीआई की निजी जिंदगी पर भी कई दाग मौजूद हैं। ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम उन्हीं ख़वातीन के लिबास को ठहराना भी अवामी नुक्ता एहतजाज बन गया। एक तरफ तो बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे का अलामती सरबराह बनना चाहते हैं, तहम खैबर पख्तूनख्वा जहां उनकी जमात गुज़श्ता 10 बरसों से ज़ायद मुसलसल इक़्तिदार में है, वहां सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार इंतहाई अबतर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हालिया सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 16 बरस की स्कूल जाने वाली उम्र के 47 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सूबे में 1000 से ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स गैर फाल हैं। चाहिए तो ये था कि बानी पीटीआई पहले खैबर पख्तूनख्वा को तालीमी लिहाज से मिसाल बनाते, तहम उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के इंतखाब को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करने को फोकियत दी। तहम वो शायद ये भूल गए कि क्या ऑक्सफोर्ड के असूल ज़वाबित इस बात की इजाज़त भी देते हैं कि क्या कोई सजा याफ्ता शख्स यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बन सकता है कि नहीं। नाज़रीन, मशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि डेली मेल के आर्टिकल ने बानी पीटीआई के हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया बानी पीटीआई को डिसग्रेस्ड पर्सन कह रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जो शख्स काउंसलर बनने की भी अहलियत नहीं रखता, वो चांसलर बनने के ख्वाब देख रहा है। बानी पीटीआई पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने की वजह से पाबंदे सलासल हैं। असल जो हकीकत है बानी पीटीआई की वो अवाम और कौम के सामने है और तमाम तर मैं समझता हूँ दुनिया के सामने जो है उनका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया गया है। इनको जो लक़ब दिया गया है बैनुल अक़वामी मीडिया की तरफ से, वो डिसग्रेस्ड एक्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, अपनी हरकत व सकनात की वजह से ही वो आज पाबंदे सलासिल हैं। घड़ी चोरी की वजह से पाबंदे सलासिल, 190 मिलियन पाउंड के डाका मारने की वजह से पाबंदे सलासिल हैं, इंतशार फैलाने की वजह से पाबंदे सलासिल हैं, बुल्गारी के हीरे जवाहरात के सेट्स बेचने की वजह से पाबंदे सलासिल हैं, पाकिस्तानी कौम को इश्तियाल अंगेज़ी दिलाने की वजह से पाबंदे सलासिल हैं, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी को एट स्टेक डालने की वजह से वो पाबंदे सलासिल हैं। खबरनामे में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। माँ तंदुरुस्त और बच्चा चुस्त, पाए खुशहाल इज़्दवाजी जिंदगी का सुख। मंसूबा बंदी के तवीरुल मुद्दती और आर्जी तरीके अपनाएं। मालूमात के लिए करीबी फलाही मरकज या हेल्थ क्लिनिक विजिट करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। अगर आप भी इनकी तरह ई बाइक या फिर वजीर आला पंजाब के दीगर फलाही मंसूबों के अहल बनना चाहते हैं तो अभी PSER सर्वे में खुद को रजिस्टर करवाएं। अब होगा सबका शुमार। PSER। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, रन ऑफ कुछ और मुल्हिका इलाके पर मौजूद हवा का कम दबाव शिमाल मशरकी बहरा अरब में समंदरी तूफान का सबब बन सकता है। मॉनसून में समंदरी तूफान का बनना बहुत गैर मामूली है। तफसील देखिए नौरीन आसिफ की इस रिपोर्ट में।
हवा का शदीद कम दबाव आज रात से कल सुबह तक रन ऑफ कच्छ इंडिया से शुमाल मशरिकी जानिब बढ़ते हुए बोरा अरब में दाखिल होने का इम्कान है, जहां इसे साजगार माहौल मैसर होने के सबब इसकी शिद्दत में इजाफा होगा और ये समंदरी तूफान की सूरत इख्तियार कर सकता है, जिसके बाद सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें मुतवक्की हैं। सी सरफेस टेम्परेचर जो होते हैं, सतह समंदर का दर्जा हरारत इस वक्त 28-29 चल रहा है इस एरिया में, जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी है, तो वो एक फेवरेबल फैक्टर होता है। तो पोटेंशियली हमने कहा कि जी ये कल जाकर ये जब अरेबियन सी में दाखिल होगा डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, तो ये साइक्लोन बन सकता है मुमकिन तौर पे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से साइक्लोन अलर्ट पर तमाम महकमों की इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को मुतहरिक रहने के अहकामात जारी किए हैं। इसके अलावा महकमा सेहत को तमाम अस्पतालों में अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने और महकमा आबपाशी को दरिया, नहरों और बंदों की निगरानी करते रहने की हिदायत की है। समंदरी तूफान के खदशे के पेश नजर कमिश्नर कराची की जानिब से आज से 31 अगस्त तक माहीगीरों के खुले समंदर में जाने और शहरियों के समंदर में नहाने या तैराकी करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हवा के शदीद कम दबाव के बायस मानसून की गैर मामूली बारिशों में शहरियों को भी हिदायत की गई है कि वो गैर जरूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलें। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और सूबा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिश के बायस खेतों में बरसाती पानी खड़ा होने से फसलें मुतासिर हुई हैं। बारिशों का हालिया सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। तफसील ज़ीशान अहमद खान से। मुसलसल बारिश के बाद हैदराबाद में रेलवे कॉलोनी, लियाकत कॉलोनी, कासमाबाद, सहरिश नगर, गुलिस्तान सज्जाद, सिटीजन और लतीफ़ाबाद के इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसे निकालने के लिए हैवी मशीनरी और वाटर पंप्स लगाए गए हैं, जबकि बारिश की वजह से निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। मीरपुर खास में बारिश के ना रुकने वाले सिलसिले के सबब शहर की गलियां और सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। ठट्ठा में भी शदीद बारिशों के बायस कच्चे के कई गाँव ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। शदीद बरसातों के सबब ज़िला मटियारी में शहरी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है और मटियारी ज़िले के दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसके नतीजे में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। टंडो अलायार में मुसलसल 3 दिन की शदीद मूसलाधार बारिशों से सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और शहर की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सजावल में मुसलसल बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। बरसात भी चल रही है, हमारा जो गांव भी पानी में है, हमारा रास्ता नहीं है, खुले आसमान पे बैठा हूँ। बदीन में मूसलाधार बारिश के बायस गली मोहल्लों में कई फीट तक पानी जमा हो गया है। सिंध के दूसरे इलाकों टंडो मोहम्मद खान, उमरकोट, थरपारकर और दीगर अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों का ये स्पेल 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी है। NDMA ने मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। यासिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हुई। सबसे ज्यादा बारिश मीरपुर खास सिंध में 107 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। काकुल खैबर पख्तूनख्वा में 84, मुजफ्फराबाद कश्मीर में 72, सरगोदा पंजाब में 63, इस्लामाबाद 22, रावलपिंडी 19, अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान में 43 और कल्लात बलूचिस्तान में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल मुतवक्का है। NDMA के मुताबिक दरियाओं में पानी के बहाव में भी इजाफे का इम्कान है। ज़्यादा बारिशें जो हैं वो बलूचिस्तान में तकरीबन 100% तकरीबन चल रहा है। सिंध दूसरे नंबर पर, पंजाब में 46% है और सिंध में भी 56% है। तो बाकी 3 जो जगह हैं, KPK है, गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है। चलास में लैंड स्लाइडिंग की वजह से चलास से गिलगित तक शाहराह कराकरम बंद हो गई। चलास रोड बंद होने से दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं और मुसाफिर फंस गए।
روڈ کھولنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سکردو روندو باغیچہ کے قریب سیاحوں کی گاڑی پر تودا گر گیا۔ گاڑی میں 4 افراد سوار تھے۔ ایک سیاح موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ زخمیوں کو سول اسپتال ڈمبو داس منتقل کر دیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے ممکنہ اثرات سے بچنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مونسون بارشوں کا حالیہ سلسلہ 31 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقاص بھٹی اپنی اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ کہیں کہیں بوندا باندی ہوئی تو کہیں بادل کھل کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے میں مونسون بارشوں کا یہ سلسلہ 31 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ موجودہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے یہ آئندہ 2 سے 3 دن ہونے کا امکان ہے، جس میں پنجاب کے تمام اضلاع میں کہیں پہ ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرات اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اکراڑا میں بارش کے باعث چھت گرنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ معمول کی سطح پر ہے۔ پی ڈی ایم اے اور مقامی انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے الرٹ ہیں۔ وقاص بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جنوبی پنجاب میں جاری موسلادھار بارشوں کی وجہ سے کپاس کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تفصیل جانتے ہیں شیراز دورانی سے۔ کپاس کی اگیتی فصل ان دنوں تیاری کے اہم اور حتمی مرحلے میں داخل ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور خاص طور پر حالیہ موسلادھار بارشوں کی وجہ سے کپاس کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بارش کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کے بعد برساتی پانی کپاس کے کھیتوں میں موجود ہے۔ تیار شدہ پھٹی اور ٹنڈوں پر گزشتہ چند روز سے وقفے سے پڑنے والی بارش سے اس کی گروتھ رک گئی ہے۔ اس دوران کاشتکار حضرات کھیتوں سے نکاسی آب اور فصل کی مسلسل نگرانی میں مصروف ہیں۔ بارش کا پانی کپاس کی فصل کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہماری کوشش ہے ہم وقتاً فوقتاً کپاس کی فصل سے بارش کا پانی نکالیں۔ پہلے بھی بارش ہوئی ہے، اس کی وجہ سے شیڈنگ شروع ہو گئی تھی، اب جو بارش ہے کھڑی ہو گئی ہے، یہ کپاس بالکل ہمارے ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پانی کو نکال کر کے فصل کو اچھا سے اچھا بنایا جائے اور اس سے جو ہے نا زرعی پیداوار جو ہے نا ہم زیادہ سے زیادہ کما سکیں۔ کوہ سلیمان میں شدید بارشوں اور رود کوہیوں میں طغیانی سے ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں 10,000 ایکڑ رقبے پر کپاس کی کھڑی فصل زیر آب آ گئی ہے۔ کھیتوں میں برساتی پانی کے نکاسی اور ضرر رساں کیڑوں کے ممکنہ حملوں میں تیزی کے سدباب کے لیے ادویات کی مد میں کسانوں کو زرعی مداخل کا مزید خرچہ برداشت کرنا پڑے گا۔ کپاس کے کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ اپنی فصل کو محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ زراعت کی ایڈوائزری پر عمل کریں۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اور اب آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ ذکر کریں گے سبی کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دالبندین اور تربت 41، ملتان اور چترال میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ ذکر کریں گے اسلام آباد کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ لاہور میں 30، کراچی میں بھی 29، پشاور 36، جبکہ کوئٹہ میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم، آپ موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، کچھ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے۔ بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کی سافٹ لانچنگ تقریب میں غیر ملکی سفارتکاروں نے خصوصی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے نمائش میں بھرپور شرکت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ For the last 24 years, the exhibition Ideas has been happening in Pakistan, where we have seen a lot of participation from international vendors, companies, governments, participating regularly and showing interest every passing year. So we are seeing a very responsible way of depicting the image of Pakistan which is contributing in the overall defense industry for not only Pakistan but for peace and prosperity and harmony in other nations also. This soft launch made my mouth watering towards the real event which will take place in November and to which
Italian companies in the defense sector will participate. We will have also a delegation from the armed forces from Italy. So I'm really looking forward to it. I would like to say congratulations to Pakistan, especially to Depot and Defense Production for organizing this soft launch of ideas. IDEAS 2024 is very important for region. Especially we know Pakistan power is very high in region, and Pakistan ready by this IDEAS meeting to send all technology to Muslim country and friendly country and brother country. We are in Iraq, we looking to this technology and to open to shift our country. Sri Lanka and Pakistan are two countries which have long-standing, very friendly and brotherly diplomatic relations. Pakistan has unconditionally supported Sri Lanka in the hour of need. Coming on to IDEAS 2024, this exhibition as well as the seminar will be a forum for international partners to have get together and to promote their production. The exhibition can show us the advancement of Pakistan, and so I appreciate that you have experiences in many kind of operations, including counterterrorism. So I think it will lead to peace of all countries by the advancement of the technology of the defense. This soft launch, it contains a lot of potential as well as production of hardwares and softwares, if I may say. And I believe that nations have a lot to benefit from this upcoming expo, inshallah. आसिम कराची एक्सपो सेंटर में 25वीं ITCN टेक की 3 रोज़ा नुमाइश में मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान $50 करोड़ से जायद सरमायाकारी से मुआहदे हुए। तफसील आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर कराची में होने वाले 3 रोज़ा मेगा इवेंट में साइबर सिक्योरिटी, टच स्क्रीन, ड्रोन्स, कैमरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा नेटवर्किंग से मुंसलिक 750 से जायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने बड़े पैमाने पर अपनी अशिया को मुतारिफ कराया। नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक से 70,000 से जायद अफराद ने शिरकत की और आपस में कारोबारी मुआहदे किए। रिसेंटली डिजिटल पावर को हमने यहाँ पर इनके साथ साइन किया है, सो हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अवान डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से हुआवे को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फुटफॉल है कस्टमर्स का, हम अपनी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारी हमारी कंपनीज के साथ हमारी यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है और उसके साथ इंशाल्लाह होपफुली हम फ्यूचर में उनके साथ कुछ ना कुछ पार्टनरशिप के तरफ जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर में हम ये लेके आ रहे हैं कि आप किस तरह बच्चों के काम जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। नुमाइश के तीनों दिन मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का इनकाद भी किया गया, जहाँ मुख्तलिफ कंपनीज ने अपनी नई मसनूआत की नुमाइश के साथ IT के शोबे की अहमियत पर जोर दिया और इस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत के विजन की तारीफ की। मुख्तलिफ कंपनीज आज कराची में इस एग्जीबिशन में, और ये भी शो कर रहा है पाकिस्तान में IT का शुबा में बहुत बड़ा है। वी आर ग्लैड कि हम भी इस तरह के इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस इवेंट से मुल्क की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडस्ट्री को खातिर ख्वाह तक़वियत मिलेगी। नुमाइश का मकसद IT से वाबस्ता सरमायाकारों और कारोबारी हजरात को सहूलत फराहम करना है ताकि पाकिस्तान को दुनिया में टेक्नोलॉजी का उभरता हुआ मरकज़ बनाया जा सके। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। SIFC के ताउन से IT बरामदात में इजाफे के लिए इस्लामाबाद IT पार्क को फाल करने के लिए हुकूमत सरगर्म अमल है। इस्लामाबाद IT पार्क के क़याम से $25 अरब की IT बरामदात का हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। मंसूबे के तहत IT के शोबे में मौजूदा माली साल में हुकूमत की जानिब से $7 करोड़ 70 लाख की सरमायाकारी की गई। SIFC के ताउन से IT पार्क मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हुए फौरी जंगबंदी के मुतालबे का इआदा किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि शहरी आबादी पर इसराइली बमबारी और ड्रोन हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ख़ित्ते में इसराइल की मुहिम जोई मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए शदीद खतरा है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी ख़ारजा मोहम्मद सारिस सज्जाद क़ाज़ी कैमरून में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। सेक्रेटरी ख़ारजा गज़ा में जारी नस्लकुशी और संगीन इंसानी सूरत हाल पर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक SCO सरबराह इजलास 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनाकिद होगा। भारत समेत तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान को दावतनामे भेज दिए गए हैं।
کچھ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی، جہاں قابض اسرائیلی فوج کے جنین اور تلکرم میں بڑے آپریشن کے آغاز کے بعد رہائشی آبادیوں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملے دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 86 فلسطینی شہید اور 77 زخمی ہو گئے۔ دیر البلح میں ایک اسکول میں مقیم مہاجرین اور خان یونس شہر پر اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینی شہید، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 18 فلسطینی شہید اور 22 زخمی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی مظالم میں فلسطینی شہداء کی تعداد 40,602 ہو گئی ہے، 93,855 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا عمان کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے سلطنت عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاع سید شاہب بن طارق بن تیمور السید، شاہی دفتر کے وزیر جنرل سلطان بن محمد النعمانی، عمان کے مسلح افواج کے چیف آف سٹاف وائس ایڈمرل عبداللہ بن خمیس الرئیسی، عمان کے مسلح افواج کے سروسز چیف سے علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں میں فریقین نے فوجی تربیت، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، دفاعی صنعت اور علاقائی سلامتی کی صورتحال سے متعلق تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ اور ناظرین، اب کچھ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران ضلع کپواڑہ میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے ان نوجوانوں کو تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ قابض فوجیوں نے ضلع راجوری اور پونچھ کے علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ فوجی کارروائیوں سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں آئندہ نام نہاد اسمبلی انتخاب سے قبل سیکیورٹی کے نام پر پیراملٹری فورسز کی اضافی 500 کمپنیوں کی تعیناتی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی مزید بڑی تعداد میں تعیناتی سے جموں کشمیر کی پہلے سے سنگین صورتحال مزید ابتر ہونے کا خدشہ ہے۔ بابائے حریت سید علی گیلانی کی شہادت کی 3ری برسی کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان اور حریت تنظیموں نے انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے سید علی گیلانی کی غیر متزلزل عزم کی تعریف کی اور جموں کشمیر کی بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی تک ان کا مشن جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سید علی گیلانی 1 ستمبر 2021 کو سری نگر میں گھر میں نظر بندی کے دوران انتقال کر گئے تھے۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا دوسرا اور آخری میچ کل سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچز PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں جی ہم چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود احمد نے کہا کہ اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم ملک کا فخر ہے۔ نوجوان اس ملک کا مستقبل ہیں جو مثبت تشخص اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ کھیل کے میدان میں اگر محنت کی جائے تو منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ رانا مشہود احمد نے کہا کہ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے دروازے نوجوانوں کے لیے کھلے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں جو ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس تاثر کو زائل کرنے کا سب سے جو میں سمجھتا ہوں مضبوط ذریعہ ہے وہ اس طرح کے نوجوان بچے اور بچی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا دوسرا اور آخری میچ کل سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچز PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ میچ کے لیے دونوں ٹیموں کا راولپنڈی اسٹیڈیم میں آج کا پریکٹس سیشن بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کرکٹرز نے نیٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ ڈرلز کی۔ دوسرے ٹیسٹ کے لیے طالب علموں کا اسٹیڈیم میں داخلہ مفت ہوگا۔ اسٹیڈیم میں داخلے کے لیے طلباء کو یونیفارمز کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی کارڈز ہمراہ لانے بہت ضروری ہوں گے اور انہیں مفت شٹل بس سروس بھی مہیا کی جائے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلسپی نے کہا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں کم بیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابرار احمد کو کنڈیشنز دیکھ کر 12 رکنی سکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔
रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जेसन गिलेस्पी ने कहा कि प्लेइंग 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। उन्होंने कहा कि शान मसूद मुस्बत कप्तान हैं। पहले टेस्ट मैच में इनिंग्स डिक्लेरेशन भी मुस्बत सोच के साथ की थी। कौमी टीम के हेड कोच ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका फराहम किया है, इसके लिए वो दूसरे टेस्ट मैच में शामिल नहीं हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।